رکھا تاکہ یہ دن ہمارے لیے بہت ہی خاص ہے۔ تو آج ہمارے درمیان خدا کے خادم پاسٹر اکرم پاشا صاحب موجود ہیں جو ہمارے منسٹری کے سینئر چیئرمین ہیں، اور ہمارے بھائی، ہمارے ہم خدمت بھائی مبشر انجیل بھائی عابد بھی موجود ہیں۔ تو خدا کے خادم، میں پہلے آپ سے پوچھ لیتا ہوں کون کون ان کو جانتا ہے؟ ہمارے درمیان ایس ایم پاسٹر طارق شاکر صاحب موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی مسز ہماری بہن جو خدا کی خادمہ ربینہ طارق ہے، وہ آج کو ہمارے درمیان موجود ہے۔ میں ایک دفعہ کہوں گا، اور پاسٹر امید کے لیے، ایلڈر حفیظ کے لیے ہم زور سے کلیپنگ کریں گے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ پاسٹر طارق شاکر صاحب کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ جنہوں نے پہلے دیکھا ہوا ہے اور انہوں نے خدمت دیکھی ہوئی۔ ہاللیلویا! یہ ہمارے پیارے بھائی ہیں، ہمیں بڑی مشکل سے ملے ہیں، یہ ملتے کام یہ لوگوں کو۔ میں چاہتا ہوں ایک دفعہ پھر خدا کے خادموں کے لیے زور سے کلیپنگ کریں، اور پھر اپنے لیے کریں، اور اس بات کے لیے کہ خدا کے خادم جو ہمارے درمیان موجود ہیں، جو اس وقت ویڈیو مووی کا کام کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی زور سے کلیپنگ کریں گے۔ بھی ان کی خدمت ہے، یہ ان کی محبت ہے، پیار ہے، جو آج چرچ کے اندر موجود ہے۔ اور ہماری منسٹری آپ جانتے ہیں، منسٹری آف کرائسٹ اور نیشن اور پاکستان ہے، لیکن جو سب سے بڑا کہ ایک خدا نے ہمیں جو دھرا دیا ہے تاکہ ہم مل کر خدا کی انجیل کی کیا کریں، منادی کریں۔ خدا کہتا ہے میرا گھر کیا ہے؟ دعا کا گھر ہے، اور ہم دعا کے گھر کے اندر جو خدا نے ہمیں دیا اس کے اندر موجود ہیں۔ کوئی بات نہیں، کچھ بہنا بھائی نہیں آ سکے، اور میں چاہتا ہوں کہ آج میں بھی 3 دن ان کے قریب نہیں تھا، میں شہر تھا، لیکن میں آپ لوگوں کی ساری محبت کا شکر ادا کرتا ہوں، اور بھائی اسلم کا، اس کی فیملی کا، بھائی شبیر کی فیملی کا، بھائی ندیم کی فیملی کا، آئے تمام بہنوں بھائیوں کا، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، ہمارے وہاں سے سب سے بڑے ہیں، جو آج اس وقت خدا کے گھر میں موجود ہیں۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں ہم خدا کی زندہ آواز کو سنیں؟ ہاللیلویا! آپ لوگ تیار ہیں؟ اور اس سے پہلے کہ جو ہمارے پنجاب کی، ہمارے ملک پاکستان کی ایک روایت ہے، ہم وہ پہلے ادا کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان خدا کے خادم موجود ہیں، میں چاہوں گا خدا کے خادموں سے کہ وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے۔ ہاللیلویا! سارے خادم کھڑے ہیں۔ میں دعوت دوں گا اپنے بڑے بھائی ندیم بوٹا صاحب سے کہ وہ آئیں گے، اور وہ خدا کے خادم کے پاس طارق شاکر صاحب کے گلے میں مالا ڈال کر انہیں ویلکم کریں گے۔ یہ تو پھولوں کی مالا ہے، اور اسی طرح خدا کی خادمہ کو مالا پہنانے کے لیے ہماری بہن سسما کو، سسٹر ربینہ طارق کو مالا پہنا کر ویلکم کریں گے۔ آپ کی بالکل تعریف کے ساتھ۔ اسی طرح ہمارے پیارے بھائی اسلم لطیف صاحب آئیں گے، اور وہ خدا کے خادم پاسٹر اکرم پاشا صاحب کو مالا پہنا کر ویلکم کریں گے۔ آپ کی خوب سی تالیاں اور تالیاں آپ کی کاملی ہونی چاہیے۔ ہاللیلویا! اور اسی طرح میں درخواست کروں گا اپنے پیارے بھائی شبیر صاحب سے کہ وہ بھی اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے، اور وہ خدا کے خادم مبشر انجیل بھائی عابد کو مالا پہنا کر ویلکم کریں گے۔ آپ کی بالکل تالیوں کے ساتھ۔ اسی طرح میں درخواست کروں گا ایلڈر حفیظ صاحب سے کہ وہ پاسٹر حمید صاحب کو مالا پہنا کر ویلکم کریں گے۔ اسی طرح ہمارے پیارے بھائی سعود صاحب موجود ہیں،
वो भी अपने कदमों पर खड़े होंगे। वो जो भाई मूड मेकर है, वो जो वीडियो बना रहा है, उसके लिए और आपकी जोर से क्लैपिंग के साथ उनको वो माला पहनाकर वेलकम करें। आजी हलीमी के साथ खुदा की खादमा सिस्टर रबीना तारिक के साथ आज मिलकर खुदा की जिंदा आवाज सुने, जो खुदा की खादमा ने खूबसूरत खुदा की आवाज लेकर आई है। तो मेरा ईमान है कि यकीनन आप सब लोग आज के कलाम के वसीला से क्या पाएंगे? बरकत पाएंगे। ताकि जब बरकत मिलती है उਦੋਂ क्या होता है? दीवाने नचते हैं। तो बरकत कहां से निकलती है? खुदा के कलाम से, खुदा के मुंह से, खुदा के मुंह के निकले हुए अशार से। जो खुदा के मुंह से वो शब्द निकलते हैं तो हमारी जिंदगियों के लिए बाबरकत होते हैं। आमीन। थैंक यू। खुदावंद आपको बरकत दे। सतशीफ रखे। हम खुदा की खादमा को पास्टर रबीना तारिक को खूब सुधारेंगे, बुझाकर वेलकम करेंगे खुदा की आवाज के लिए। खुदावंद के अजीम और जलाली नाम में आप तमाम कलीसिया को मेरी तरफ से सलाम। आप सब लोग खुश हैं? आज हमें खुश भी होना चाहिए कि आज ये हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है कि आज हम जिंदों की ज़मीन पर सलामत हैं और आज इस सबत के दिन में शामिल हैं कि हम खुदावंद के कलाम की बातों को खुदा के खादमों के वसीला से सुने। तो हम सब जो यहाँ पे आए हैं, हम सब एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की सलामती के लिए, एक दूसरे की खुशी के लिए कि हम खुशी से खुदा के घर में आए हैं और खुदा के कलाम की बातों को सुनने के लायक हुए हैं। तो ज़ोरदार तालियां हम एक दूसरे के लिए बजाएंगे और खुदा के खादमीन के लिए भी, तो जो हमें खुदावंद का जिंदा कलाम सुनाते हैं। मेरे साथ निकालिएगा खुदावंद के खादम, अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 22 बाब और उसकी 34 से 40 आयत तक। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 22 बाब और उसकी 34 से 40 आयत तक। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। हम खुदा के पाक कलाम में पढ़ेंगे मत्ती की अंजील उसका 22 बाब उसकी 34 आयत में तलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, और जो फरीसियों ने सुना कि उसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया है तो वो जमा हो गए, और उनमें से एक आलम शरा ने जमाने के लिए उससे पूछा, ऐ उस्ताद, तराइत में कौन सा हुक्म बड़ा है? आमीन। अच्छा 40। और उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख, और बड़ा और पहला हुक्म यही है, और उस दूसरे उसकी मानद ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। उन्हें दो हुक्मों पर तमाम तराइत और अंबिया की सहीफों का कलम रहा है। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। जोर से कहें आमीन। आज जैसा कि हमने कलाम मुकद्दस में से सुना कि जब फरीसियों ने सुना कि उसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया, यानी कि उस वक्त सदूकी जो थे वो खुदावंद यीशु मसीह से मुख्तलिफ़ तरह के सवालात करते थे। तो खुदावंद यीशु मसीह उनके दिलों को, इरादों को जानता था, और वो जानता था कि ये अब मुझसे किस चीज़ का सवाल करेंगे। तो वो पहले ही खुदावंद यीशु मसीह के दिल में ये बातें आ जाती थीं। तो इसी तरह फरीसियों ने भी जब देखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया, यानी कि जितने वो सवाल करते थे खुदावंद यीशु मसीह उनका जवाब देते थे, तो उन्होंने एक शरअ आलम ने आजमाने के लिए, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह को आजमाने के लिए उसने कहा कि तू हमें बता कि
उस्ताद तुरैत में सबसे बड़ा हुक्म क्या है? तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे क्या कहा कि उसने कहा कि खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत कर। खुदावंद से मोहब्बत क्या है? सबसे पहले तो हम ये देखें कि मोहब्बत क्या है। मोहब्बत ये है कि हम जिससे प्यार करते हैं हम उसकी बातों को मानते हैं, उसका हम एहतराम करते हैं, उसकी हर एक चीज़ का ख्याल रखते हैं। ये मोहब्बत है कि जिस तरह खुदा ने हमें बनाया, खुदा ने हमें इस दुनिया में लेके आया, तो हम खुदा की बेपनाह मोहब्बत के तुफ़ैल हम इस दुनिया में आए कि हम खुदा के कलाम की बातों को सीख सकें, खुदा के कलाम के बारे में जान सकें। खुदावंद ने कहा कि अपने सारे दिल से। जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं तो हम बहुत दफ़ा ये सोचते हैं कि क्या हम सारे दिल से खुदा को प्यार करते हैं? ऐसा नहीं है। आजकल के अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र डालें तो हम अपने सारे दिल से खुदा से प्यार नहीं करते, बल्कि हमारा दिल जो है वो दुनियावी बातों की तरफ लगा हुआ है। हम दुनिया की फ़िक्रों में खोए रहते हैं कि आज हम ये काम कर लें तो हमारे दिल को तसल्ली होगी, आज हम अपने लिए ये टारगेट जो है वो अचीव कर लें तो हमारे लिए क्या हो, तसल्ली होगी और हमारा दिल जो है वो खुश होगा। लेकिन मेरा और आपका खुदावंद इन सारी बातों से खुश नहीं होता, क्योंकि खुदा ने अपना ज़िंदा कलाम हमारे लिए भेजा ताकि हर रोज़ उसे हम पढ़ें, अपनी ज़िंदगियों में जगह दें। और जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, उसे अपनी ज़िंदगियों में जगह देते हैं, तो फिर ही हम पूरे दिल के साथ खुदावंद से प्यार करते हैं, अपनी अकल के मुताबिक खुदा से प्यार करते हैं। आजकल हमारी खुदा के कलाम की बातें थोड़ी कड़वी भी हैं, लेकिन हमें इससे डरने की या इससे घबराने की ज़रूरत नहीं। आजकल हमारी मोहब्बत ने माती मार दी हुई है। क्या कर दिया? मोहब्बत ने हमारी माती मार दी है कि हम ये भूल जाते हैं कि खुदा जिसने सलीब पर जान देकर, अपनी जान का फिदिया देकर हमारे लिए दुख सहा और अपने आप को सलीब के हवाले किया ताकि हम ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ, तो फिर हम उस मोहब्बत को क्यों भूल जाते हैं? हम दुनिया की चीज़ों के पीछे पागल हुए फिरते हैं कि हमें ये भी मिल जाए, हमें वो भी मिल जाए। अजीज़ों, याद रखें कि जब हम अपने खुदा से मोहब्बत करते हैं, जब हम अपनी पूरी दिल से, अपनी पूरी सारी अकल से, अपनी पूरी जान से खुदावंद से प्यार करते हैं, तो खुदा तोहफे में ये सारी चीज़ें हमें बख्श देता है। तो फिर क्यों हम दुनिया की फ़िक्रों और परेशानियों में लगे रहते हैं, इस तगोदो में लगे रहते हैं कि हम यहाँ से भी किसी का हक़ मार लें, वहाँ से भी हक़ मार लें, ताकि हम अपने दिल को, अपनी जान को तसल्ली और इत्मीनान दे सकें। याद रखें कि तसल्ली और इत्मीनान जो है वो हमें खुदावंद के ज़िंदा कलाम से मिलता है। जब हम खुदा की पाक हुज़ूरी में झुकते हैं, खुदा के बनाए हुए जो लोग हैं, खुदा की जो मखलूक है, जब हम उससे प्यार करते हैं तो खुदा के हम पसंदीदा बेटियां और बेटे कहलाते हैं। हमने कभी ये जाना ही नहीं कि हम अपनी सारी ताकत को जो है वो खुदा के लिए सर्फ नहीं करते। हमें खुदा ने सेहत दी है, खुदा ने हमें तंदुरुस्ती इनायत की है, लेकिन इस सेहत और तंदुरुस्ती को हम दूसरे गलत कामों की तरफ सर्फ करते हैं। और कभी भी हमने अपने दिल में ये ख्याल नहीं किया कि ये तंदुरुस्ती, ये सेहत, ये अकल और दनाई और ये सारी ताकत किसने हमें दी है? खुदा ने दी है। तो जब खुदा ने हमें ये सब कुछ इनायत किया है, तो फिर हमारा भी हक़ बनता है कि हम खुदा से पूरे दिलो जान के साथ, पूरी क़ुव्वत के साथ खुदा से प्यार करें। क्योंकि जब हम खुदा से प्यार करते हैं तो फिर हम खुदा के जो लोग पैदा किए हुए हैं उनसे भी हम प्यार करते हैं। मैं इसके लिए आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगी कि जब हम दूसरों से प्यार करते हैं, इसका मुज़ाहरा हम अपनी अमली ज़िंदगी में करते हैं, कि इसकी मिसाल हम अपनी शख्सी ज़िंदगी से लेते हैं। कि जब हम खुदा से प्यार करते हैं, कि एक घर की मिसाल ले लें कि जब हम मियाँ बीवी होते हैं या हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, यानी कि किसी जगह जब हम काम करते हैं, तो अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम मिलकर बाहम मशवरे के साथ उस तंजीम को या उस घर को जब चलाते हैं तो हम उस घर को भी बुलंदियों तक ले जाते हैं, उस इदारे को भी बुलंदियों तक ले जाते हैं। और ये सब किसके तुफैल है? मोहब्बत के तुफैल है। हम
मुख्तलिफ लोग जो हैं वो किसी इदारे में जब काम करते हैं तो वो मुख्तलिफ जगहों से होते हैं। याद रखिएगा कि कोई भी लोग जो हैं वो एक ही मोहल्ले से उठकर एक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आते। जब भी कोई तंजीम बनती है और जब भी कोई इदारा काम करता है तो वहाँ मुख्तलिफ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों से चल कर आते हैं और वो एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और उनकी सोच आपस में नहीं मिलती, लेकिन उनका एक टारगेट होता है कि हमने ये वाला टारगेट क्या करना है, अचीव करना है। और उस टारगेट को अचीव करने के लिए वो सब मिलकर क्या करते हैं, बामी मशवरे से उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि अपनी खूबियों को, जितने लोग होते हैं उस तंजीम में, उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या करते हैं, बाहम मशवरा करते हैं, मिलकर मशवरा करते हैं। अपनी सारी कुव्वत, अपनी सारी ताकत के साथ वो उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं कि जो उन्होंने अपने लिए सेट किया होता है। इसी तरह अपने टारगेट को अचीव करने के लिए बाहमी प्यार मोहब्बत के साथ मिलकर जब मेहनत करते हैं तो वो अपने इदारे को बुलंदियों तक पहुंचाते हैं। इसी तरह जब हम खिदमत में भी होते हैं या अगर हम मियाँ बीवी हैं तो हम एक घर में रहते हैं तो हम अपने घर में मोहब्बत की बुनियाद इस तरीके से रखते हैं कि हम बाहम मशावरत से मशवरे करते हैं, एक दूसरे के साथ मिल के चलते हैं। तो याद रखें कि जिस घर में एक मशवरा होता है वहाँ को कभी भी अबलीस ठहर नहीं सकता। हम मिलकर खुदा के हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। मिलकर जब हम मशवरा करते हैं तो हम अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करते हैं, उन्हें खुदा की बातें बताते हैं। हम अपने बच्चों को बताते हैं कि हम पूरी अकल के साथ, अपनी पूरी जान के साथ और अपनी सारी ताकत के साथ खुदा से प्यार करते हैं। और उस प्यार का इजहार जब हम अपने शख्सी ज़िंदगी में देखते हैं तो हम अपने बच्चों की परवरिश के ज़रिए उस प्यार को अपने बच्चों में मुंतकिल करते हैं। अब हम अपने बच्चों को अच्छी मसीही इक़्तिदार सिखाते हैं और वही मसीही बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो बड़े होकर खुदावन के नाम को जलाल देते हैं। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज 2 छोटे बच्चों ने गीत गाया और उन्हें खुदावन की परस्तिश की। तो ये खुदावन का बहुत सारा प्यार है कि जो वालदैन की सूरत में जो वालदैन अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करते हैं, जो खुदा से प्यार करते हैं, वो अपने बच्चों के जहनों में, उनकी ज़िंदगियों में भी ये बीज बोते हैं कि वो खुदा से प्यार करें अपनी पूरी अकल के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ। क्योंकि जब हम अपने फोकस जाएँ वो खुदावन पे रखते हैं तो खुदावन हमारी तमाम राहों को सीधा कर देता है। मगर हमने अपनी ज़िंदगियों को दुनियावी चीज़ों के पीछे लगा रखा है। हम खुदा की उस मोहब्बत को ही भूल चुके हैं जो उसने हमसे की। हम ये बात भूल जाते हैं कि खुदा ने हमसे इतनी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और उसने अपना इकलौता बेटा इसलिए बख्शा कि खुदा हमसे क्या करता है, प्यार करता है। तो जब प्यार हम एक दूसरे से करते हैं तो फिर हम एक दूसरे की गलतियों कोताहियों को माफ़ करते हैं, दूसरों की खूबियों को हम आगे लेके आते हैं और दूसरों की खामियों को हम नज़रअंदाज करते हैं। तो आज का जो दूसरा हुक्म था कि तू अपने पड़ोसी को अपनी मानद प्यार कर। क्या हम आज के दौर में ऐसा करते हैं? हमारे घर के साथ अगर कोई भूखा बैठा होता है तो हमें उसका पता नहीं होता। हम तो खुद पेट भर के खाना खा लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि हमारे साथ वाले घर में जो कोई भूखा है हम उसे खाना खिलाएं, उसकी तीमारदारी करें, उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखें। हमने कभी ये बात सोची ही नहीं, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में मगन हैं। हम अपने टास्क जो हैं वो उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो याद रखें कि ज़िंदगी जो खुदा ने हमें बख्शी है वो सिर्फ़ अपने टास्क पूरा करने के लिए नहीं है। खुदा ने हमें जो ताकत अनायत की है, हमें जो अकल अनायत की है, हमें जो कुव्वत अनायत की है, उस कुव्वत का, अकल का हमें इस्तेमाल जो है वो दूसरों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना है। जब हम दूसरों की बेहतरी के बारे में सोचते हैं, दूसरों के साथ मोहब्बत से पेश आते हैं और पूरी कुव्वत के साथ जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो खुदा हमें ढेरों बरकतें इनायत करता है। सम टाइम हम ये बात भूल जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी जो है वो सिर्फ हमारी नहीं है। हम जिस किसी के साथ भी, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं या किसी तंजीम के साथ हैं, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। तो हमें उनकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखना होता है। हम उस प्यार के तुफैल जो खुदा ने हमें दिया है, उस प्यार को हमें दूसरों तक मुंतकिल करना है। क्योंकि खुदा का ये सबसे बड़ा हुक्म है कि तू अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से और अपनी सारी कुव्वत से अपने खुदा को प्यार कर। तो जब हम खुदा के बंदों से प्यार करते हैं,
خدا کے لوگوں کے لیے بھلائی کی باتیں کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے خدا سے بھی پیار کرتے ہیں. کیونکہ دیکھا جائے تو آج پیار کی میں ایک اور مثال دینا چاہوں گی کہ بہت سارے والدین ہیں کہ جو اپنے بچوں کو دوسروں کے پیار کی خاطر چھوڑ کر چلی جاتی ہیں. مائیں بھی جو ہیں وہ اکثر جی پیار میں مبتلا ہوگی اور وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں. لیکن میرا اور آپ کا خداوند جو ہم سے پیار کرتا ہے اس نے ہماری شکل اپنی ہتھیلی پر بنا رکھی ہے. وہ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے اپنا آپ جو ہے وہ صلیب پر قربان کر دیا. کس لیے؟ کہ وہ صرف ہم سے پیار کرتا ہے. اور اسی پیار کے طفیل اس نے ہمارے لیے کوڑے کھائے، صلیب پر جان دی تاکہ ہم نجات پائیں اور زندگی پائیں. اور زندگی کیا پائیں؟ کثرت سے پائیں. اور کثرت کی زندگی خداوند کے زندہ کلام نہیں ہے. خدا نے ہمیں جو کلام بخشا ہے اس کلام کو ہم اپنی زندگیوں میں جگہ دیں. خداوند کے قوانین کو ہم اپنی زندگیوں میں جگہ دیں. ہم ہر روز اٹھتے ہیں اور ہم عام دن کی طرح ہی ہر دن کو گزار دیتے ہیں. ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ خدا نے آج کا دن جو ہماری زندگی میں بخشا ہے اس دن کو ہم خداوند کے قوانین کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، خدا کے حکموں کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیں. کیونکہ جب ہم خدا کے حکموں کو مانتے ہیں، خدا کے لوگوں سے پیار کرتے ہیں، تو پھر خدا ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بناتا ہے. میں کلام کی بہت زیادہ گہرائیوں میں تو نہیں جاتی، لیکن میں سادہ الفاظ میں ہمارے چینل پر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم آسان الفاظ میں خداوند کی باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں. جب ہم خداوند کی باتوں کو ہر روز سنتے ہیں کلام مقدس کے وسیلہ سے، مختلف پاسٹرز کے وسیلہ سے، مختلف خادمین کے وسیلہ سے، تو ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں. کیونکہ زندگی ہمیں ایک مرتبہ ملتی ہے، تو پھر کیوں نہ یہ زندگی جو ہے وہ دوسروں کی بہتری کے لیے، دوسروں کی بھلائی کے لیے صرف کی جائے. نہ کہ ہم اتنے خود غرض بن جائیں کہ ہم صرف اپنی جو ذات ہے اس پر ہم اپنی توجہ جو ہے کنسنٹریٹ کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے صرف اپنی ذات کی طرف دیکھنا ہے اور ہم خدا کے پیار کو بھول جاتے ہیں. ہمیں خدا کے پیار کو نہیں بھولنا، بلکہ ہمیں خدا کے پیار کو یاد رکھنا ہے اور اس پیار کو ہمیں دوسروں تک منتقل کرنا ہے. کیونکہ کلام مقدس میں یہ سب سے بڑا حکم ہے کہ تو اپنے پڑوسی کو اپنی مانند پیار کر. تو اپنے مانند پیار وہی لوگ کرتے ہیں جو خداوند کو دل سے قبول کرتے ہیں اور خدا کے لوگوں کی ہر وقت اور ہر جگہ مدد کرتے ہیں. بے شک ہمیں لگے کہ ہم اکیلے رہ گئے ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچیے گا کہ میرا اور آپ کا خداوند جو آسمان پر ہے وہ کل بھی ہمارے ساتھ تھا، آج بھی ہمارے ساتھ ہے اور اب تک ہمارے ساتھ رہے گا. بے شک دنیا کے لوگ ہمیں چھوڑ جائیں، دنیا کے رشتے جو ہیں وہ ہمیں چھوڑ جائیں، لیکن میرا اور آپ کا خدا ہر وقت ہر جگہ ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہمارا نگہبان ہے. وہ ہمیں ہر ایک مصیبت سے، ہر ایک پریشانی سے چھڑانے کا فضل رکھتا ہے. وہ ہمیں ہر ایک دکھ سے نکالنے کا فضل رکھتا ہے. تو پھر کیوں نہ ہم اپنے خداوند سے اپنے پورے دل سے، اپنی پوری جان سے اور اپنی ساری طاقت سے پیار کریں. ہمیں خدا نے جو طاقت دی ہے اسے ہم پازیٹیو وے میں دوسروں کی اچھائی کے لیے استعمال کریں، نہ کہ ہم بری ایکٹیویٹیز میں حصہ لے کر اس طاقت کا غلط استعمال کریں. یاد رکھیں کہ اس دنیا میں ہم صرف چند روزہ ہیں. ہماری زندگی چند روز کی زندگی ہے. اس میں ہمیں نہیں پتہ کہ کس وقت وہ گھڑی آن پہنچے کہ خداوند ہمیں اپنے پاس بلا لے. تو جو خدا نے ہمیں وقت بخشا ہے اس وقت کو ہم غنیمت جان کر اپنی ساری جان کو، اپنی ساری عقل کو اور اپنی ساری طاقت کو خدا کے جلال کے لیے استعمال کریں. جب ہم اپنے سارے منصوبے خداوند کے جلال کے لیے، خداوند کے اپنے منصوبے جو ہیں وہ خدا پر چھوڑتے ہیں، تو خداوند خود بخود ہماری تمام راہوں کو اور ہمارے نیک ارادوں کو پورا کرتا ہے. تو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں بڑی برکت دے کہ صرف ہم اپنی جان کی فکر نہ کریں، بلکہ ہمیں خدا نے جو نعمتیں اور برکتیں بخشی ہیں، خدا نے ہمیں جو عقل اور دانائی بخشی ہے، اسی عقل اور دانائی کے طفیل ہم خداوند کے لوگوں کی مدد اور رہنمائی کریں. تبھی ہم خداوند کے لائق طور پر بیٹیاں اور بیٹے کہلانے کے حقدار ٹھہرتے ہیں. آپ میں سے ایسے کون لوگ ہیں کہ جو خدا سے پیار کرتے ہیں؟ ہم سب خدا سے پیار کرتے ہیں. تو یہ خداوند کا جلال ہے، خداوند کا پیار ہے ہمارے لیے کہ خدا نے ہمیں یہ ہمت اور طاقت بخشی کہ آج کے دن ہم زندہ ہیں اور خدا کے کلام کو سننے کے لائق ہوئے ہیں. تو آج کے دن کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اور آج اس
कलाम को हम अपने वजूद में रखते हुए हम खुदा से अपनी ज़िंदगियों के लिए दुआ करते हैं कि खुदा हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, कि जब कभी भी हम दूसरों की मदद के लिए निकलें तो कभी भी हम अपने कदमों को रोके नहीं, कभी भी हम घबराएं नहीं और कभी भी हम अपने आप को कमज़ोर ना समझें, क्योंकि जब खुदा हमारे साथ है तो फिर हम हर एक मुसीबत का, हर एक परेशानी का मुकाबला कर सकते हैं। खुदावन हमें इतनी हिम्मत और ताकत इनायत करे कि वो जो प्यार खुदा ने हमसे किया उसी प्यार को हम खिदमतों के साथ अपने घर में और अपने ख़ानदान के साथ बांट सकें। खुदावन हमें आज के कलाम पर चलने का फ़ज़ल बख्शे कि हम हर रोज़ उस प्यार को और उस मोहब्बत को महसूस करें जो खुदावन अपने लोगों से करता है। हम कैसे भूल सकते हैं कि खुदा ने हमारे वास्ते इस दुनिया में आया और उसने अपनी जान का नजराना हमारे लिए दिया। हम खुदा से दुआ इल्तिजा करते हैं कि जैसे खुदावन के ज़िंदा कलाम में लिखा है कि तू अपने पड़ोसी को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से प्यार कर। तो खुदावन आज के कलाम के वसीला से हमें बड़ी हिम्मत और ताकत इनायत करे, हमें ये अकल और दनाई बख्शे कि खुदा ने जो नेमतें और बरकतें हमें बख्शी हैं उनको हम सिर्फ़ अपनी भलाई के नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी इस्तेमाल करें। खुदावन आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। और आज मैं आप लोगों से एक सवाल आपके लिए छोड़ूंगी कि अगर खुदा ने हमें अकल, दनाई, कुव्वत बख्शी है तो क्या हम इस अकल और दनाई को और उस प्यार और मोहब्बत को दूसरों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करते हैं? अगर हम इस प्यार और मोहब्बत को दूसरों की बेहतरी के लिए नहीं इस्तेमाल करते तो आज हम इस खुदा के घर में ये बात अपने दिलों में और अपनी ज़िंदगियों में लेकर जाएं कि आज के बाद हम जिस किसी से भी मिलेंगे प्यार से मिलेंगे, मोहब्बत से मिलेंगे और ये प्यार जो है हम दूसरों तक पहुंचाएंगे। और जब हम दूसरों से प्यार करेंगे तो खुदा हमें उस प्यार के तुफैल ढेरों बरकत इनायत करेगा। खुदावन हमें ऐसा करने का फजल बख्शे, आमीन। कितनी जिंदगी ने आज के कलाम की फज बरकत पाई है। प्लीज़ खुदा आप सबको बरकत दे। इससे पहले हम आखिरी गीत कहेंगे पर अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदा ने आज की सुबह हमसे कलाम किया और मोहब्बत के बारे में हमने सीखा है। सो मिन्नत करेंगे कि खुदा आज के कलाम पर हम सबको अमल करने का गहरा फजल बख्शे। और मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे दरमियान बहन रिहाना नदीम है उनसे कि वो इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करेंगी कि आज का हमने कलाम सुना है और खुदा से दुआ मांगेगी कि खुदा अमल करने का फजल बख्शे। हालेलुया। कदूस कदूस रब्बुल फाज, सच्चे आसमानी पे बेदरुबा खुदाए कदूस, मैं तेरा शुक्र करती और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देती हूँ मेरे खुदावन कि तूने हमें अच्छे खादम बख्शे हैं मेरे खुदावन, जो हमारी बेहतरी के लिए मेरे खुदावन तेरे कलाम को हमारे दरमियान बयान करते हैं मेरे खुदावन। हमें मेरे खुदावन समझने वाला दिल और मेरे खुदावन अक्ल दनाई बख्श मेरे खुदावन, ताकि हम तेरे कलाम पर अमल करें मेरे खुदावन। हमारे सख्त दिलों को नरम कर मेरे खुदा, ताकि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें मेरे खुदावन। तेरे कलाम की बातों को पूरा करें मेरे खुदा, तेरे कलाम की बातों पर अमल करें मेरे खुदावन और हम तुझे पसंद आए मेरे खुदा। हम तेरे हजूर झुके मेरे खुदावन, हमारा झुकना तुझे पसंद आए मेरे खुदावन। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ मेरे खुदावन कि मेरे खुदावन तूने दूर दराज से खादमों को मेरे खुदावन हमारे दरमियान पहुंचाया है मेरे खुदावन। इनके यहाँ पर आना मेरे खुदा मुबारक ठहरे, इनके कदम यहाँ पर मेरे खुदावन मुबारक ठहरे मेरे खुदा, और बहुत सारी जिंदगियों को बचाने का सबब बने मेरे खुदावन। तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करती हूँ मेरे खुदावन तेरी खादमा के लिए मेरे खुदा, जिन्हें मेरे खुदावन तूने हमारे दरमियान पहुंचाया है मेरे खुदावन। तूने और भी बरकत देना मेरे खुदा, ये और भी लोगों को मेरे खुदावन तेरे कलाम की तरफ मतवज्जा कर सके मेरे खुदावन। तूने बड़ी बरकत दे मेरे खुदा, अपने मकाशवा इन पर खोल मेरे खुदा, इनकी मेरे खुदावन बड़ी, इन्हें भी बड़ी अकल दनाई हिकमत अता कर मेरे खुदावन, ताकि ये तेरे लोगों को मेरे खुदावन तेरे कलाम के भेद की बातें बता सके मेरे खुदावन, और तेरे लोग मेरे खुदावन उस पर अमल करने वाले हो जाए मेरे खुदा। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ मेरे खुदावन, तूने गुजरे हुए वक्त में हमारी मदद और रहनुमाई की है।
तूने हर तरह की मुश्किलों से हमें निकाला है मेरे खुदा, तूने हमें गुलामी से निकाला है मेरे खुदावन, तूने हमें आजाद किया है मेरे खुदावन। तेरी बड़ी आजादी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ मेरे खुदावन। तूने हमें अपने कलाम की रोशनी बख्शी है मेरे खुदावन, इसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ मेरे खुदावन। हमारे दिलों में मेरे खुदावन तेरा डर और खौफ रहे मेरे खुदा, तेरे डर और खौफ में मेरे खुदावन रह कर हम तेरे लोगों से प्यार और मोहब्बत करें मेरे खुदावन, तेरे कलाम की बातों पर अमल करें मेरे खुदावन। तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं मेरे खुदावन। बाकी मंदा इबादत के हिसाब में मेरे खुदावन तू बड़ी मदद करना, रहनुमाई करना मेरे खुदावन। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ मेरे खुदावन। ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से बख्श दे, आमीन। हम खुदावंद की परस्तिश में आखिरी गीत गाएंगे। किसी गीत के दौरान अपनी शुक्रगुजारियां खुदा के हुजूर में गुजराने की, और गीत गाएंगे बिना यीशु नहीं मिलती शिफा तेना जगह जगह फिर मुड़का। हालेलुया। बिना यीशु नहीं मिलती शिफा, बिना यीशु नहीं मिलती शिफा, जगह जगह फिर मुड़का, जगह जगह फिर मुड़का। ओदे कोल हर गम दी दवा, ओदे कोल हर गम दी दवा, जगह जगह फिर मुड़का, जगह जगह फिर मुड़का। बिना यीशु नहीं मिलती शिफा, जगह जगह फिर मुड़का, जगह जगह फिर मुड़का।
मसीह की आते अंधेरे तेरे उठे जाते हैं अन्हेरों दे कोले आके अखियां भी खोलते ने अन्हेरों दे कोले आके अखियां भी खोलते ने अन्हेरों दे कोले आके अखियां भी खोलते ओते पूरी देवी देंदा है जवाब ओते पूरी देवी देंदा है जवाब ना जगा जगा तेरे मुर्दा ना जगा जगा तेरे मुर्दा ना जगा जगा तेरे मुर्दा आमीन हालेलुया बिना यीशु ने हम मिलते शिफा आते ना जगह जगह प्रेज़ लॉर्ड यकीनन खुदा के पास शिफा है और वही शिफा का मंबा है। सबसे पहले हम अपनी दुआ करें। बदरनाम खुदा के काजी पास्टर तारक शाकर साहब हैं, अपने ज़ाहिरी हालात और एक वर्क का जा रहे हैं उनके बारे में बताना चाहते हैं। सब आपकी जोरदार ताली में खुदा के पास के अजीम नाम में आप तमाम कलीसिया को सलाम पेश करता हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आज अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से कि आज तकरीबन कुछ 7-8 साल बाद यहाँ पे मेरी आमद हुई। अभी पास्टर सलीम पूछ रहे थे कि कौन कौन बहन भाई हैं जो मुझे जानते हैं, लेकिन चंद बहन भाइयों ने हाथ खड़ा किया। आपको याद होगा यहाँ पे भाई शहजाद प्यारा जब क्रिसमस और ईस्टर की इबादत करते थे तो उन दिनों में हम अपने चैनल की तरफ से यहाँ मूवी बनाने आते, तो शायद आपको याद हो। तो आज खुदा का फजल है कि पीपीसी चैनल बहुत दूर दराज इलाकों में उसकी नशरियात देखी जाती है। तो आज का भी ये जितना प्रोग्राम है ये चैनल पे चलेगा। इसके अलावा अगर यहाँ पे पीपीसी चैनल की नशरियात नहीं आती तो आप अपने मोबाइल पे आप पीपीसी चैनल को सर्च करिएगा यूट्यूब पर। तो ये जितना भी आज का प्रोग्राम है चर्च का प्रोग्राम ये आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। तो शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर पाशा साहब, पास्टर सलीम का। भाई सलीम से मेरी बात हुई। आज ख़ास जो मैसेज मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आज अगर हम मसीह हैं, क्रिश्चियन है, तो ये किसकी बदौलत हैं? जी वो तो है खुदावंद यीशु मसीह की बदौलत। लेकिन मैं मज़ीद आपसे ये कहना चाहूँगा कि यीशु मसीह के 12 शागिर्द जिनमें उनके जो एक शागिर्द मुक़द्दस तोमा उस वक़्त बड़े सगीर एशिया में आए और यीशु मसीह का पैगाम यहाँ पे लेकर आए। तो आज 70 साल हो गए हैं। बहुत सारे यहाँ पे बड़े सगीर में श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और बहुत सारी कंट्री यहाँ पे मौजूद हैं बड़े सगीर में। तो आज यहाँ पे अगर आज हम मसीह हैं तो ये मुक़द्दस तोमा की बदौलत है। तो उस दौर में यीशु मसीह के जो 12 शागिर्दों में मुक़द्दस तोमा टैक्सला में आए। टैक्सला में उनका चर्च है और मोरस गंडा का वो महल बनाने आए, वो भी वहाँ पे मौजूद है। और जब वो मुक़द्दस तोमा वहाँ पे मनादी करते थे टैक्सला में, तो वहाँ पे 12 से 14 मज़ाहिब थे, मुख्तलिफ़ कौमें थी जिनमें वो वहाँ पे मनादी भी करते थे, यीशु मसीह का कलाम शेयर करते थे। तो टैक्सला में वहाँ पे जो सारा जो शहर है उसका पानी कड़वा था। तो वहाँ के जो लोग थे, मज़ाहिब थे, उस कड़वे पानी को पीते थे और मुख्तलिफ़ बीमारियों का वो शिकार थे। तो उन्होंने मुक़द्दस तोमा को मसीह का बंदा जानते हुए सवाल किया कि अगर आप मसीह के बंदा हैं तो आप ऐसा करें, यहाँ पे कोई ऐसा मौजज़ा करें कि हमें मीठा पानी पीने को मिले। तो मुक़द्दस तोमा ने वहाँ पे एक जगह पे निशानदाही की और वहाँ पे एक कुआं बनवाया और जब उस कुएं का पानी निकला तो वो मीठा था। तो आज भी वो सदियाँ की सदियाँ गुज़र गई हैं, लेकिन मुक़द्दस तोमा के हाथ का बनाया हुआ कुआं वहाँ पे मौजूद है। और जब मुक़द्दस तोमा ने उस कुएं को पानी को निकाला बनाया तो वहाँ पे मुक़द्दस तोमा ने कुएं पर बरकत भी डाली थी कि इस पानी को जो पिएगा मुख्तलिफ़ बीमारियों से निजात पाएगा। और ख़ास तौर पर
وہاں کے جو ٹیکسلا کے جو گائیڈ کرنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی اس وقت سے دادا پردادا ہمارے یہاں پہ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں. تو شاید آپ لوگوں میں سے پہلے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ مقدس توما یہاں پہ ٹیکسلا میں آئے، اور آج اگر ہم مسیح ہیں تو ہم مقدس توما کی بدولت ہیں. تو ہم اکثر کلیسیا کو وہاں پہ زیارت کے لیے لے کے جاتے ہیں. تو میں یہ ضرور آپ سے گزارش کروں گا، میری بھائی سے بھی ہوئی بات کہ 30 تاریخ کو بروز جمعے والے دن رات کو ہم یہاں سے نکلیں گے اس کی زیارت کے لیے، اور اس کے لیے 2000 روپیہ ہدیہ ہے. وہاں پہ خدا کے خادموں کے ساتھ مل کر ہم عبادت بھی کریں گے. بہت سارے بہن بھائی جا رہے ہیں، آنے جانے کی اس میں ٹریول ہے. 2000 میں صبح کا ناشتہ اور دوپہر کا کھانا بھی ہے. تو میں ضرور چاہوں گا کہ آپ اس زیارت میں شامل ہوں. بہت سارے بزرگ ہیں، شاید آج ہم سے وہ جدا ہو گئے ہیں، لیکن خدا نے جب تک ہماری زندگی رکھی ہے، اس زندگی میں ہوتے ہوئے جو ہمارے تاریخی مقامات ہیں، مسیح مقامات ہیں، ان کو جاننا. بائبل مقدس میں توما کا ذکر ملتا ہے، لیکن جب ہم وہاں پہ جائیں گے تو ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا. تو میں بلکہ میں چاہوں گا کہ آپ سب 30 تاریخ کو 15 تاریخ تک آپ اپنے پیسے پاسٹر صاحب کو جمع کروائیں تاکہ آپ کی جو سیٹیں ہیں وہ بک ہو سکیں. تو میں آپ لوگوں کے برکت کی دعا چاہوں گا اور تاکہ آپ اس زیارت میں شامل ہو سکیں. خداوند آپ سب کو بہت ساری برکت دے. آمین. آپ نے ایک چھوٹے جی خادم کو اس لائق سمجھا. میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ آج میرے درمیان آج ہمارے ہم خدمت بھائی جو 8 سال پہلے یہاں پر انہوں نے ایک چینل کی عوض، ایک مووی کی عوض خدا کی خدمت کرتے تھے. آج خدا نے صرف انہیں مووی یا چینل ہی نہیں بلکہ اور جگہ میں اپنے کلام کی بھی برکت دی ہے اور خدمت کی برکت دی ہے تاکہ وہ جگہ بہ جگہ میں جا کر خدا کے پیغام کو چینل کے ذریعہ سے اور خدا کے کلام کی عوض اور جا کر اور مووی کے ذریعہ جا کے لوگوں کو اپنے چینل کی عوض جا کے ان کو کلام سنائے. ہو سکتا ہے وہاں پر خدا کے خادم نہیں بھی جا پہنچتے تو وہ اپنے چینل کی عوض وہاں پر خدا کا کلام سناتے ہیں. ہم خدا ان کے شکر گزار ہیں کہ بھائی جب بھی آتے تھے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب بھی انہوں نے جس عبادت کی مووی ہم نے انہیں مووی نہیں صرف ان کو ایک رینٹ دیتے تھے گاڑی کا، جو آتے تھے ہم نے کبھی مووی کی یا ان کو نہیں دیے تھے کہ عبادت. ہم نے کہا بھائی یہ آپ کا کام ہے، یہ خدمت. انہوں نے کہا نہیں یہ میری خدمت ہے اور یہ میری خدمت ہے، لیکن آپ جو ہے اپنا خوشینہ صرف جو بھی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں. وہ کون سا ہے؟ ہم انہیں پٹرول دیتے تھے. ہاللیلویہ. اتنی بڑی خدمت، ایک اتنا بڑا چینل کا سینئر خادم ہو کر کو کہے کہ جناب نہیں میں تو اتنے پیسے لے کر جاؤں، یا اس کو 1000 دی 2000 دی 3000 ڈیمانڈ کی جائے، لیکن خدا کے خادم نے کبھی ہمارے سے ڈیمانڈ نہیں کی تھی اور ایک اچھا خادم بن کے ہمیں دکھایا. کہ جب بھائی سے بات ہوئی ہے، بھائی مجھے مانک پاجی سے ملا رحمت سے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں دیکھ رہا تھا کہ بھائی طارق شاکر صاحب یعنی کہ اور بھی ہیں، لیکن یہ خداوند کا شکر ہے، یہ خدا کی محبت ہے. اور میں اس محبت کو اسی طرح جیسے آج خدا کے خادمہ نے ہمیں محبت کرنی سکھائی، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیا کریں؟ محبت بانٹیں. اگر ہم یسوع مسیح کے بیٹے بیٹیاں بننا چاہتے ہیں تو پھر ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرنی ہے؟ محبت کرنی ہے، اچھے تعلقات رکھنی ہے. یہ نہیں کہ نفرت کو یا غصے کو یا ایسے ذریعہ لے کر چلے پھر ہم یسوع کے بیٹے بیٹیاں نہیں، اس کے لوگ نہیں کہلا سکتے. لیکن اگر اچھے لوگ بننا ہے تو پھر یسوع کے حکموں پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. اور یہ ہمارے لیے بڑی بات ہے جو ہمارے سیکھنے کے لیے، ہمارے نالج کے لیے، ہماری نسل کے لیے. جیسے لکھا ہے کہ باپ نے دنیا سے کیا کی؟ محبت کی، اور بیٹے نے کہا کہ آ کر اس نے بھی محبت کی. آج اس کی محبت کے بدولت ہم یہاں سب کٹھے ہیں. اگر اس کی محبت نہ ہوتی تو ہم ایک دوسرے سے آج بھی جدا ہوتے. یہ اس کے بیٹے کی محبت ہے. میں 3 روز میں چیچا وطنی کے اندر تھا، یہاں پر وہ 13 چک کے اندر اور 12 کے اندر اور 21 چک غازی آباد کے اندر مجھے 3 جگہ ملی ہے جہاں پر میں خدمت کر کے 3 دنوں کے اندر میں اپنے خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں. جو وہاں کے لوگ تھے جب وہ دوسرے علاقہ کے اندر میرے ساتھ جاتے تھے وہ کہتے پانچ صاحب اتنی محبت، لوگ کہنے لگے پانچ صاحب آج آپ نے ہمارے پاس رہنا ہے. مجھے بہت سی رات بھر جب ان بہنوں نے درخواست کی کہ پاسٹر صاحب آج ہمارے پاس اپنے رہنا غازی آباد کے لوگ، تو میں نے کہا کہ بہن
ये तो मैं सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ, खिदमत करने अभी नहीं आया। जब मैं खिदमत करने को आपके पास रात रहूंगा। उसने कहा आपको मुझे बताना है, जब आपने यहाँ आना है हम सब लोग एक जगह पर क्या होंगे, अपनी जुबानी। और जो 13 के लोग थे उन्होंने ही बताया कि पास साहब इतनी मोहब्बत लोग आपसे करते हैं। मैं कि ये मोहब्बत मुझसे नहीं और मेरे यीशु से मोहब्बत करते हैं। हालेलुया, ये यीशु की मोहब्बत है। अगर मैं 20 साल या 10 साल बाद भी किसी से मिलता हूँ तो मेरे भाई मेरी बहनें मुझसे वैसे ही मोहब्बत करती थी जैसे वो पहले करती थी। हालेलुया, तो मैं उन बहनों के भाइयों के लिए मोहब्बत, और पास तारक शाकर साहब का और उनकी मिसेस अरबीना तारक का और खुदा की खादमा का और उसकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ। खुदा के खादम, इनको तो आप सब लोग जानते हैं। हमारे सीनियर पास अकरम पाशा साहब है, भाई आबद साहब है, पास मीर साहब है, हफीज साहब, बल्कि भाई असलम का, सब लोग बाकी लोगों को आप लोग जानते हैं। हम खुदा उनके शुक्रगुजार हैं, उनकी आज में फिर मोहब्बत है कि हमें एक जगह इकट्ठा किया, ये उसकी मोहब्बत, एक दूसरे इकट्ठे होके। तो मैं चाहता हूँ खुदा के खादम अपने कदमों पर खड़े होंगे और मजीद खुदा के खादम आपके लिए बरकत की भी दुआ करेंगे, हदिये के लिए बाकी भी वो सरकल में बरकत भी और अदा करेंगे। आए हम सब अपनी आंखों को इससे बंद करेंगे। खुदा के खादम हमारे लिए दुआ करेंगे। जो चाहते हैं कि बहन भाई बीमार भी हैं वो अपना देना हाथ अपने दिल पर या अपने सर पर रख सकते हैं। खुदा के खादम आज बाकी हिस्से में वो रहनुमाई करेंगे, वो हदिये के लिए भी दुआ करेंगे, वो आपके लिए शिफाया भी दुआ करेंगे और दुआ रब्बानी भी और कल में बरकत भी अदा करेंगे। हालेलुया। आइए सब सर खुदा के हजूर झुक जाएं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रो, आंसू खुदावंद हम तेरे पास आते हैं। आज खुदावंद सुबह हम तेरे तख्त के सामने झुकते और तुझे सजदा करते हैं, क्योंकि सजदा तुझे को वाजिब है और तू सजदे के लायक है। और तू असीम खुदा है, तू शाह असीम है, तू बनी नौ इंसान को खलक करने वाला खुदा है। ए जहानों के तख्लीकार, ए तख्लीकी आजम, आज सुबह हम तेरे आगे झुकते हैं और हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि तू ही हमारा खुदा है, तू ही हमारा खुदावंद है और तेरे सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं है। आज हम इस जगह पर तुझे जलाल देते हैं, क्योंकि तू जलाल का बादशाह है और तू कमाल का बादशाह है और तेरे जैसा कोई खुदा नहीं है। हम इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हर वक्त हमारे साथ रहता है। तू कभी भी हमसे जुदा नहीं होता, तू कभी भी हमसे अलग नहीं होता, तू कभी हमसे दस्तबरदार नहीं होता। तू हर वक्त, हर लम्हा, हर समा तू हमारे साथ साथ रहता है। हम गिरते हैं तू हमें उठा खड़ा करता है, क्योंकि तेरे पास इख्तियार है और वही इख्तियार तूने अपने खादमों को बख्शा कि जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुव्वत पर गालिब आओ, तुम्हें किसी चीज से जर ना पहुंचेगा। खुदावंद मैं तेरा खादिम होते हुए खुदा के बेटे यीशु के नाम में आज इस वक्त मैं खुदावंद सारी कलीसिया के लिए तेरी बरकत चाहता हूं और तेरे इख्तियार को इन जिंदगियों पर इस्तेमाल करता हूं। खुदा, all sickness go right now in Jesus mighty name. All troubles go right now in Jesus mighty name. यीशु के नाम में तमाम तरह की बीमारियां आज अभी इसी वक्त जाती रहे। तमाम तरह के दुख यीशु के नाम में आज अभी इसी वक्त जाते रहे। तमाम तरह की परेशान करने वाली स्पिरिटें हम खुदा के खादिम होते हुए खुदा के बेटे यीशु के नाम में इन जिंदगियों से जाने का हुक्म जारी करते हैं। प्रेज, थैंक यू जीसस। और खुदावंद बरकत और बहाली की दुआ करते हैं। खुदा तू बरकत दे, बरकत पर बरकत चाहते हैं। खुदावंद तेरी ब्लेसिंग एक एक जिंदगी पर ठहर जाए, तेरा मस्सा, तेरा जोर, तेरी कुदरत, तेरी आग इन जिंदगियों पर ठहर जाए और तमाम तरह के इब्लीस के नापाक मंसूबे इन जिंदगियों से आज अभी इसी वक्त जाते रहे। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में जाते रहे, यीशु के नाम में जाते रहे। ये जिंदगी आजाद हो यीशु के नाम में, ये जिंदगी आजाद हो यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तेरी तारीफ हो खुदावंद कि तू ये सब कुछ करने की कुदरत रखता है, क्योंकि तू बाइख्तियार खुदा है। मैं इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूं और देख खुदावंद
आज खुदावन तूने अपने बंदा पास्टर तारक शाकिर को ये फजल बख्शा कि वो आज मोकन चर्च में खुदावन तेरी खिदमत करने के लिए आए। मैं खुदावन तेरे बंदा के लिए, तेरी बंदी के लिए खुदावन तेरा गहरा फजल, तेरा मस्सा, तेरी होली फायर उसकी जिंदगी पर मांगता हूं खुदा, और उसे अपनी खिदमत के लिए बड़ी कसरत से इस्तेमाल कर खुदावन, ताकि तेरे नाम को वुर्सत मिले, तेरे नाम को जलाल मिले, क्योंकि हम सब तेरे नाम को जलाल देने के लिए इस जगह पर इकट्ठे हुए हैं खुदा। आज इस जगह से, इस चर्च से खुदावन तेरा नाम जलाल पाए। इसी तरह खुदावन देख, तेरे लोगों ने तेरे हजूर अपनी मुट्ठी को खोला है, तेरे खेत में जो बीज बोया है ये बीज आज बहुत सा फल लाए। खुदावन तेरे कलाम में लिखा है, जो खुशी से बोते हैं, जो आंसू से बोते हैं, वो खुशी से काटते हैं। तो खुदावन ये बीज जो आज आंसू के साथ बोया गया है, ये कल खुशी से काटा जाए। खुदावन मैं इन सब जिंदगियों के लिए तेरी बरकत चाहता हूं और तेरी सलामती और तेरा फजल मांगता हूं। और तू खुदावंद अपने लोगों को अपने लिए इस्तेमाल कर, तू अपने लिए इस्तेमाल कर खुदा, ताकि लोग तेरी कुर्बत में बढ़ते जाएं, तेरे जलाल में बढ़ते जाएं और तुझे अपना नजात दहिंदा मानते हुए तेरे नाम को जलाल दे सके। यीशु मसीह के नाम में आज ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आइए हम खुदा उनकी सिखाई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। और हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूपात की शराकत और फाकत अब से लेकर मस्जिद की दोबारा मन तक हाजिर जमात के साथ, मोकन टीम के साथ, जलियाना गांव के साथ और कौम बनी सईद के साथ हमेशा से हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम में, आमीन। आप सबकी सलामती हो, खुदावंद आपको बरकत दे। अपनी जगह पर अभी बैठे रहे। ये आज ये इबादत का तो हमारा लोग खत्म। अब खुदा ने जो हमें बरकत दी है उसके लिए भी आप शुक्रगुजारी करेंगे। हमारे दरमियान बेटी हीरा नदीम है, वो अपने कदमों पर खड़ी होगी, और खुदा ने हमारी बेटी को, उसने मैट्रिक क्लियर की है। मैं चाहता हूँ और खुदावन के मैं शुक्रगुजार है, और खुदा ने इस बेटी को ये कामयाबी और फतह याबी अता की है, और खुदावन इस बेटी को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और अगले जो उसकी पढ़ाई है उससे मुझसे रहनुमाई करे। दूसरी बात, हमारा जिस जगह के मैं आप जिक्र कर रहा था कि वहां पर मुझे बताया गया है कि पास्टर सलीम भुट्टा साहब, आपने दोबारा इस शहर के अंदर एक बड़ा प्रोग्राम करना है। लेकिन मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि ये खुदा ने छोटे जे खादम को सलाइक बनाया है, और वहां पर खुदा ने वो काम किए हैं जहां पर टूटी हड्डियों को जोड़ दिया है, और बाकी जितने भी बीमार ने, खुदा ने, मेरा ईमान है कि उनको शिफा दी। और उन्होंने लोगों ने कहा अभी ये सिर्फ अभी हमने शुक्रगुजारी रखी है, अभी आपने बड़ा प्रोग्राम यहाँ करना है। हमने 3 जगहों पर आपने उसके लिए प्रोग्रामों के लिए भी दुआ करना कि हम मजीद ज्यादा तो ज्यादा उसके शहरों के लिए, उन लोगों के लिए, उस कलीसियों के लिए बरकत की दुआ करें कि खुदा उन बहनों भाइयों को उस गुर्बत से, उस लानत जल्द से जल्द आजाद करे, और खुदा यीशु के अज़ीम में आकर खुदा की शुक्रगुजारी करें, आमीन।